हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस आज का एमसीसी कॉलेज का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का बीके का एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन. So as you can see, I have the question paper with me. So I'll be giving you the answers of all these questions. So first one, answer in one word है incomplete system of bookkeeping. उसका आंसर है single entry system. ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है? स्मॉल बिजनेसमैन. जो बहुत ही छोटे बिजनेसमैन है वो लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो वो है सिंगल एंट्री सिस्टम. कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस फुल रिकॉर्ड करते हैं, कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस आधा रिकॉर्ड करते हैं और कुछ कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं. तो बेस्ट एग्जांपल इज आपके आजू बाजू का कोई किराने का शॉप रहेगा, यू कैन सी कि दे मेंटेन वेरी हैपेजेड रिकॉर्ड्स. करेक्ट. तो उस तरह के बिजनेसमैन सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. अमाउंट इनरिकवरेबल ऑफ डेटर्स, डेटर्स से जो अमाउंट हम रिकवर नहीं कर पाए उसको बोलते हैं बैड डेट्स एंड इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस. A liability which may arise in future and depends upon happening or non-happening of certain event, that liability is called as a contingent liability. कोई और इवेंट पे निर्भर करता है, वो इवेंट हुआ तो ही लाइबिलिटी अपने सर पे आएगा, वरना नहीं आएगा. That's called a contingent liability. Commodities in which a businessman deals, the answer is goods. Owners funds in the business which includes capital and reserves, इसका आंसर होता है नेट वर्थ. बिजनेस का नेट वर्थ, नेटवर्थ से बिजनेस की पहचान होती है. देन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. तो एग्जाम में पूछा खाली दो है और 3 मार्क्स ईच का वेटेज है, उसका मतलब काफी डिसेंट साइज का आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग. उन लोग मैं आपके साथ चारों डिस्कस करूंगा. So first one is objectives of bookkeeping. So what all you can write here? Number one, you can write कि bookkeeping provides the necessary data to businessman for decision making. ये पहला आप लिख सकते हो. Second thing is bookkeeping helps a businessman to find profit loss of his business. Third is government is able to find out the tax liability. The fourth one you can write कि bookkeeping can be used as evidence in the court of law. कि fourth uses we can write. Then fifth one you can write कि lenders use bookkeeping records to decide how much loan can be given to the business. Correct. So इस तरह के यूजर्स होते हैं bookkeeping के, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो हमें लिखना है इसमें. Okay. So roughly around 5 points should be enough. Okay. Then next is discount. So discount is a concession given by seller to the buyer. Okay, that is called as discount. Then you can mention कि discount is of two types. One is trade discount, other one is cash discount. Then you can write few words about trade discount. So what's a trade discount? The discount which is given for dealing in bulk, for dealing in huge quantity is called as trade discount. And trade discount is never recorded in the books of accounts. You can mention that as well. Then you can write few words about cash discount. So cash discount is the discount given for immediate payment या prompt payment. That is called as cash discount, and cash discount is always recorded in the books of accounts. You can mention these points here. Okay. Next is liability. So what's a liability? So amount payable by the business to others is known as liability. Then you can write that liabilities are of two types. One is called as a fixed liability, other one is called as a current liability. So fixed liability means the liabilities which are payable after a period of 12 months. उसको बोलते हैं हम लोग fixed liability. So examples are बैंक लोन, या यू कैन राइट कैपिटल, ये सब फिक्स्ड लाइबिलिटी हो गए. देन यू कैन राइट करंट लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटीज विच आर पेएबल विद इन 12 मंथ्स, दे आर कॉल्ड एज करंट लाइबिलिटीज. यू कैन मेंशन अबाउट क्रेडिटर्स, यू कैन मेंशन अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एग्जांपल्स आप दे सकते हो. ओके, दैट वुड सफाइस दैट. नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम. तो यू कैन राइट हियर कि दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक, perfect and complete system of recording all the business transactions, invented by Luca Barco Pacchioli. It assumes that every transaction has got two aspects and both these aspects are recorded in terms of debit and credit. ऐसे आप लिख सकते हो डबल एंट्री के बारे में. You can even mention the principles of double entry system, but I guess the answer will become too long. इतना भी आपने लिख दिया तो भी बहुत हो जाएगा 3 मार्क के लिए. Alright. Then question number 3A speaks about classify the following into personal, real and nominal accounts. So let's begin the discussion. The first one is goodwill. So goodwill is an intangible asset, so it will be classified as a real account. Prepaid insurance is a personal account.
लाइफ स्टॉक का मतलब होता है एनिमल्स जो हम लोग बिजनेस में होल्ड करते हैं, इट्स एन एसेट, इट्स अ रियल अकाउंट. ड्रॉइंग्स बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है, इट्स अ पर्सनल अकाउंट. रिपेयर्स टू बिल्डिंग्स इज अ नॉमिनल अकाउंट. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज अ रियल अकाउंट. RP Enterprises is an institution, so it becomes a personal account. And dividend received का मतलब होता है income earned by buying shares, so it's a nominal account. All right. So that completes your question number 3A का discussion. Then we move on to question number 3B. Classify the following accounts under the category of assets, liabilities, capital, expenses, losses, incomes, and gains. So first one is loan to Ravi. The key word is to. Loan to means loan given. So loan given is an asset. Remember this. यही अगर loan from Ravi रहेगा तो answer is liability. Very very important one. Rent. Now the problem is they have not given कि rent received है कि rent paid है. तो we assume that it is rent paid and it's an expense. कुछ नहीं बोला तो rent paid मानने का. Pre received rent. Pre received rent का मतलब क्या होता है? Future का rent अपने को अभी से मिल गया. So this is advance income. And advance income is a liability. Because service देना है, we are liable to give service. पैसा तो आ गया अपने पास. Okay, it is something like suppose you pay Mensa 11th standard के time पे 12th का fees, तो Mensa is liable to give you service. तो liability है Mensa के लिए, समझा? Creditor मतलब amount payable, तो liability है. Interest received मतलब मिल चुका है, तो it's an income for the business. Unpaid commission मतलब commission देना बाकी है, outstanding है, तो it's a liability for the business. Bank means bank balance, and bank balance is obviously an asset for the business, and bad debts recovery is a gain for the business. उल्टा of bad debts loss है, ये उसका उल्टा है, business के लिए वो gain है. Okay, then let's move to question number 4. Question number 4 में लिखा है journalize the following transactions in the books of Mr. Akshay. तो आपने को journal entries करना है. तो first one है borrowed rupees 2 lakhs from Bank of India. Akshay brought own cash 4 lakhs and machinery worth rupees 1 lakh into the business. Okay. Now the key word here is own cash. So 4 लाख रुपया exclusively खुद का कैश है. Plus उसने 2 लाख रुपया बोरो भी किया है from bank. इसका मतलब कुल मिला के cash is 6 lakhs. It's a real account and that is coming into the business. So debit what comes in के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? आपको कैश को डेबिट करना चाहिए 6 लाख रुपीज से. अंडरस्टूड? सो दिस वाज द मोस्ट क्रूशियल थिंग देयर. ओके, 2 lakhs इज बोरोड कैश प्लस 4 lakhs इज ओन कैश. सो कुल मिला के 6 लाख रुपीज इज कैश डेबिट. कैश के अलावा उसने बिजनेस में मशीनरी भी लाया है, इसके लिए मशीनरी भी डेबिट हो जाएगा 1 लाख से. ओके, देन 2 बोरोड है तो बैंक लोन अकाउंट आएगा 2 lakhs एंड बचा हुआ अमाउंट इज कैपिटल अकाउंट विच इज 5 lakhs. ये आपका अगस्त 1 का ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट वन अगस्त 2 1 से कनेक्टेड है. ओपन द करंट अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया. ओके, ओपन द करंट अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिटेड हाफ ऑफ द अवेलेबल कैश इन इट. तो अवेलेबल कैश कितना था आपके पास? तो अवेलेबल कैश आपके पास 6 लाख रुपया था. तो 6 लाख का आधा 2 लाख रुपया उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. सो द जर्नल एंट्री 6 लाख का 3 लाख, सॉरी. सो जर्नल एंट्री विल बी बैंक डेबिट बिकॉज बैंक इज द रिसीवर एंड कैश को क्रेडिट बिकॉज कैश गोज आउट. इट इज बैंक टू कैश एंड द अमाउंट इज 3 लाख रुपीज बिकॉज अवेलेबल कैश वॉज 6 lakhs. उसका आधा इज 3 lakhs. ओके, नेक्स्ट वन August 6th. It's a very very nice transaction. August 6 को बोला है कि paid rupees 10,000 for material and 5,000 for wages to the carpenter for making chairs and tables for office. तो ऑफिस के लिए चेयर और टेबल बनवाया, और चेयर और टेबल बनवाया मतलब फर्नीचर बनवाया जो कि एक एसेट होता है. और वो एसेट बनाने के लिए
10,000 का मटेरियल लग गया और 5,000 का वेजेस लग गया, मतलब एसेट 15,000 में बना। इसका मतलब फर्नीचर इज 15,000 रुपीज। यानी आपको मटेरियल वेजेस ऐसा अलग अलग कुछ नहीं दिखाने गए, डायरेक्ट फर्नीचर का बात करने का। इट्स अ रियल अकाउंट और आपने बनवाया, मतलब आपके धंधे में फर्नीचर आया। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देने का। 15,000 रुपीज से, और आपने पे किया, आपके पास से कैश गया। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000 इज द जर्नल एंट्री। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, August 8th one, काफी इंटरेस्टिंग है। It says bought goods worth rupees 1,20,000 from Sonia at 10% TD and CD, paid half of the amount by cash and 1/4 amount by check. Wow. तो सबसे पहला लेट्स मेक अ वर्किंग नोट। ओके, पहला एक वर्किंग नोट बनाता हूं मैं, आप देख लो। सो दिस इज अगस्त 8 तारीख का ट्रांजैक्शन। ओके, सबसे पहला आप ये देखिए कि आपका जो ग्रॉस प्राइस है वो 1,20,000 है। ग्रॉस प्राइस मीन्स व्हाट, द प्राइस बिफोर सब्ट्रैक्टिंग एनी डिस्काउंट, दैट इज ग्रॉस प्राइस, करेक्ट। फ्रॉम दिस वी फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 10% ट्रेड डिस्काउंट विच इज 12,000। तो आपका नेट प्राइस हो गया 1,08,000 एंड दिस 1,08,000 इज योर परचेजेस। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, इसका हाफ यानी 54,000 आपने पे किया कैश के जरिए, 1/4 27,000 आपने पे किया बैंक के जरिए। तो और एक 1/4 बचता है जो आपने पे नहीं किया। ओके, तो जो आपने पे नहीं किया उसके लिए सोनिया आ जाएगी, सोनिया का नाम आ जाएगा, बस लेन देन बाकी है। वॉट एवर यू पेड ऑन दिस यू विल गेट कैश डिस्काउंट, विच मीन्स ये जो है ये डिवाइड होएगा कैश और डिस्काउंट में, ये डिवाइड होएगा बैंक और डिस्काउंट में। ओके, नाउ व्हाट इज कैश डिस्काउंट का रेट, तो कैश डिस्काउंट का रेट इज 10%। तो सबसे पहला मैं 54,000 पे 10% कैलकुलेट करेगा। तो 54,000 पे अगर हम 10% कैलकुलेट करते हैं तो 5400 डिस्काउंट आ जाता है। तो 54,000 में से अगर मैं 5400 अगर माइनस करूं, बराबर, सो आ जाएगा 48,600 विच विल बी कैश। 48,600 कैश आएगा। ठीक है, उसी तरह 27,000 पे मैं 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगा तो 2700 डिस्काउंट आएगा। अब 27,000 में से अगर मैं 2700 माइनस कर दूं तो 24,300 जो है वो बैंक का फिगर आ जाएगा। ओके, नाउ परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, वो डेबिट हो जाएगा, मतलब बाकी सब क्रेडिट हो जाएगा। सो आपका जर्नल एंट्री जो है वो इस तरह दिखेगा। It is purchases account debit 1,08,000 to cash 48,600 to bank 24,300 to discount received account that will be 8,100. So 8,100 कैसे आया, अगर आप वंडर कर रहे हो तो मैंने ये 5,400 को और ये 2,700 को, ये दोनों को ऐड किया, तो 8,100 डिस्काउंट आता है। एंड टू सोनियाज अकाउंट 27,000। ओके, दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ August 8th वाला ट्रांजैक्शन। I hope all of you got this very well. Fine. अभी नेक्स्ट वन की ओर बढ़ते हैं। August 8th के बाद नेक्स्ट है आपके पास August 10th। So August 10th में बोला है received cash rupees 5,000 for commission and 10,000 for rent through NEFT। उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
पहले रिसीव्ड कैश 5000 फॉर कमीशन, उसको पहले हम डील कर लेते हैं। तो कैश मिला तो मैं इसका एंट्री ओरली बोल देता हूँ, इसका एंट्री है कैश टू कमीशन। ओके, फिर 10,000 रेंट के तौर पे मिला और ये एनईएफटी के जरिए मिला, मतलब बैंक अकाउंट में आया पैसा। तो सेकेंड पार्ट का जर्नल एंट्री है बैंक टू रेंट 10,000। दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है। द फर्स्ट वन वॉज कैश टू कमीशन, सेकेंड वन वॉज बैंक टू रेंट। ओके, नेक्स्ट, विराट परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 फ्रॉम अस। विराट परचेस्ड फ्रॉम अस, विराट ने हमसे खरीदा, मतलब हमने बेचा, ये सेल्स है। ओके, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 18% जीएसटी है, एंड ओनली हाफ अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम हिम। तो इसमें भी क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है? तो एक सेल्स अकाउंट है, हमने डिस्कस कर लिया था। फिर एक जीएसटी अकाउंट दिख रहा है, आधा अमाउंट मिला मतलब आधा के लिए कैश है, और आधा नहीं मिला मतलब आधा के लिए विराट भी आएगा। ओके, तो पहला मैं कैलकुलेशंस कर लेता हूं। तो ये है अपना अगस्त 12 तारीख। तो आपका बेसिक सेल वैल्यू जो है वो 80,000 है। इनफैक्ट उसको हम लोग बेसिक वील कॉल इट ग्रॉस प्राइस, सॉरी। सो ग्रॉस प्राइस इज 80,000। फ्रॉम दिस लेट्स सबट्रैक्ट 10% TD which is 8,000. So net price is 72,000. This will become your sales. Okay, on this we are going to add CGST at the rate of 9%. Then we will add SGST again at the rate of 9%. तो ये ऐड करने के बाद हमें जो अमाउंट आएगा वो रहेगा टोटल अमाउंट ड्यू। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट दिस मच फर्स्ट। सो 9% हमें कैलकुलेट करना है CGST। सो 72,000 पे लेट अस कैलकुलेट 9%। तो 72,000 पे अगर हम 9% कैलकुलेट करते हैं तो 6480 is your CGST, 6480 is your SGST. Okay, so total amount due is 84,960. इसमें से क्या हुआ है? आधा अपने को मिला है। ओके, सो 84,960 डिवाइडेड बाय 2। सो 84,960 डिवाइडेड बाय 2, 42,480 मिला है, ये कैश है। और बाकी का आधा 42,480 आपको नहीं मिला है, उसके लिए विराट अकाउंट आएगा। ओके, ये अपना बेसिक वर्किंग नोट हो गया, जहां पर हमने न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हमने गुड्स बेचा है, हमको पैसा आ रहा है, तो हम कैश को डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो 42,480 कम्स इन। विराट को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर के हिसाब से। सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। फिर आउटपुट CGST 6480 एंड आउटपुट SGST 6480। ये उसका जर्नल एंट्री है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस वेरी वेल। इसके बाद हम जाते हैं अगला ट्रांजैक्शन की ओर, 14th वन। तो 14th को लिखा है परचेस्ड 50 शेयर्स ऑफ टाटा स्टील फॉर ₹100 ईच। 50 शेयर है, 100 रुपए में लिया है, तो 50 इंटू 100 करने का, तो ये हो गया 5,000। ब्रोकरेज चार्ज ऑन द सेम वॉज 1%। ये ब्रोकरेज को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, और ये एसेट परचेज करने के टाइम पे हो रहा है, तो परचेज प्लस पीपी मैचिंग। तो 5,000 का 1% इज 50 रुपीज, और ये 50 रुपीज को प्लस कर देना है, मतलब 5050 इज द प्राइस एट विच शेयर्स आपको गिरा। ओके, शेयर्स मतलब इन्वेस्टमेंट्स होता है, इट्स अ रियल अकाउंट एंड यू आर बाइंग इट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करने का।
और वहां पे लिखा है कि अमाउंट इज पेड थ्रू बैंक, इसके लिए बैंक को क्रेडिट कर देने का। सो जर्नल एंट्री है इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक 5050, या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 5050। ओके, द लास्ट ट्रांजैक्शन, विराट बिकेम इंसॉल्वेंट and out of amount due only 50 पैसे in a rupee could be recovered। तो 50 पैसे in a rupee का मतलब होता है 50%, याद रखना हर एक रुपए में 100 पैसा होता है। तो 50 पैसे in a rupee मतलब 100 पैसे के बदले में 50 पैसा, विच मीन्स 50%। तो 50% हमें रिकवर हो गया उसके एस्टेट से। प्राइवेट एस्टेट मतलब क्या, जमीन जायदाद से। एज फाइनल डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, आखिरी इंस्टॉलमेंट, पहला और आखिरी। फर्स्ट एंड फाइनल का मतलब क्या, पहला और आखिरी। 50% मिला और बाकी 50% ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला है बिकॉज वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। करेक्ट। तो अभी इसको हमें कनेक्ट करना है 12 तारीख का ट्रांजैक्शन के साथ। तो 12 तारीख को क्या हुआ था कि हम लोग ने विराट को गुड्स बेचा था और उसने आधा ही पे किया था उस दिन, मतलब और एक आधा अपने को उससे लेने का था। मतलब विराट वॉज अवर डेटर, ओके, एंड नाउ ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब मेरा डेटर हैज बिकम अ बैड डेटर। तो जो अमाउंट मेरे को डेटर से नहीं मिला, दैट इज माई लॉस एंड दैट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स। ओके, सो जर्नल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन विल अपीयर लाइक दिस। सी, पहली बात तो विराट को हमने डेबिट कितने से किया था, देखो 42,480 से किया था। इसका हाफ कर लीजिए, इसका हाफ करेंगे तो 21,240 आएगा। सो 21,240 अपने को मिला, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 21,240, और एक आधा वो नहीं मिलने वाला है तो लॉस है। इसके लिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 21,240 एंड 2 विराट करना पड़ेगा उसका अकाउंट को बंद करने के लिए। सो इवन दो उसने आधा ही पे किया, बट उसका अकाउंट को हम पूरे से बंद कर देंगे बिकॉज बाकी का आधा वैसे भी वो देने वाला नहीं है, तो उसका नाम को हमारे बुक्स में से हमें निकाल देना है। निकालने के लिए विराट को पूरा अमाउंट से क्रेडिट करने का। ऑल राइट, सो आई होप दिस डिस्कशन वॉज वेरी वेरी यूजफुल टू यू। यू गॉट टू नो वेयर ऑल यू वेंट रॉन्ग। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।